Hello students, let's start with assignments question number 14, right? It's given the velocity of a bullet is reduced from 200 meter per second to 100 meter per second while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter. The retardation assuming to be uniform will be how much? Yes, what is there? It is given, the distance is given because कितने देर जाने के बाद वो रुक जा रहा है 10 सेंटीमीटर जाने के बाद. Initial speed is given, final speed is given, correct? So question number 14, no difficulties are there, right? In question number 14, initial velocity is given how much? U is equal to 200 meter per second, right? Yes or no? और फाइनल वेलोसिटी वो जाके कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? 100 मीटर पर सेकंड हो रहा है, करेक्ट? Yes or no? If it is 100 मीटर पर सेकंड एंड एडिशनल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मतलब हाउ मच मीटर? 0.1 मीटर, करेक्ट? So it is asking about acceleration and you know v square minus u square is equal to 2as, correct? So you can find acceleration is equal to how much? V square minus u square by 2s. So simply by putting the values of v square and u square by 2s, you can find this, right? It's not that much difficult. Next, coming to question number 15, right? 15 is doubt. A car starts from rest with an acceleration a and then decelerates at a constant rate b for some times to come to rest. If the total time taken by it is t, then the maximum velocity of the car is given by. Students, इस तरह की questions मैंने आपको last class एक triangle करके समझाया था, right? I just made you explain about this concept last class, right? Question number 15. ठीक है, चलो देखते हैं फिर भी. Students, question में given है body starts from rest. Rest मतलब u is equal to 0, right? Then दिया हुआ है let body accelerates. कुछ देर के लिए accelerate हो रहा है, कुछ देर के लिए decelerate होता है, ठीक है students? Let student वो t1 टाइम के लिए accelerate होता है and t2 टाइम के लिए decelerate होता है, ठीक है? Let t1 time for which it accelerates, right? Time for which it accelerates, right? Time for which it accelerates, correct? Yes or no? Let t2 is the time for which it deaccelerates. Time for which it deaccelerates. सर आपका वॉइस लैग कर रहा है. Time for which it deaccelerates, ठीक है? नेक्स्ट उसने दिया हुआ है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, तो टोटल टाइम मान के चलो t, टोटल टाइम इज t, मतलब t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, करेक्ट? स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट? If I'll put v is equal to u plus at, right, then you can write v is equal to how much? U is 0, a time a में accelerate हो रहा है for t1, right? So you got velocity after t time, velocity v is equal to at1, right? And finally comes to rest means final velocity is equal to 0. That means this becomes the initial velocity after some time, right? और final velocity दूसरे केस में क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, v is equal to 0 हो रहा है, correct? तो अगर वहां पर मैं पुट करूं तो that is 0 is equal to how much? रिटार्ड हो रहा है v माइनस b इंटू t2 टाइम के लिए रिटार्ड हो रहा है. मानो कि वो a में एक्सीलरेट किया और b में रिटार्ड हो रहा है, और कितने टाइम के लिए? t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, राइट? t इज इक्वल टू t1 प्लस t2. देन t2 टाइम के लिए अगर रिटार्ड हो रहा है तो t2 इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पर t माइनस t1 लिख सकता हूँ, करेक्ट? क्योंकि उसने, मान के चलो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो मैं ग्राफिकली समझा रहा हूँ, करेक्ट? उसने 0 से शुरू किया, राइट? वेलोसिटी v तक पहुंच गया है ना, यहां तक उसने पहुंच गया. And this time is let t1, correct? And ये acceleration a है और ये deacceleration b है. समझ पे आ रहा है कि नहीं? और फिर यहां पर पहुंचने के बाद वो क्या होता है? deaccelerate हो रहा है यहां तक, और वो टाइम कितना है? let यहां तक t1 और this total time is t. So this time is t minus t1 लिख सकते हैं. मैंने उसको t1 t2 दे दिया, करेक्ट? पहला के लिए v is equal to u plus at डाल दिया कि यहां पर वेलोसिटी कितना होगा? 81 होगा डेफिनेटली, बिकॉज u is 0. फिर जब यहां से उसने deaccelerate किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? v होगा. दैट v मैंने यहां पर v डाल दिया मैंने यहां पर, राइट? सो v इनटू माइनस b में रिटार्ड हो रहा है वो, यू कैन सी हियर इट इज b, नथिंग, दिस इज b ओनली, राइट? दिस इज b ओनली, करेक्ट? तो b t माइनस t2 टाइम के लिए, करेक्ट? सो यू गॉट टू लिंक्स, यस और नो? देन अभी दोनों को समझा, दोनों को इक्वेट करके निकालते हैं, ठीक है? तो फ्रॉम ये एक इक्वेशन निकला स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू 81, और दूसरा यहां पर इक्वेशन क्या निकल गया? v, ये भी मेरे दूसरा इक्वेशन मिल गया, राइट? सो दिस, लेट्स कंपेयर दिस टू इक्वेशंस एंड यू कैन फाइंड, राइट? देखो कौन सा वाला ऑप्शन होगा दोनों इक्वेशन को ये करके, ठीक है? कंपेयर द टू इक्वेशंस स्टूडेंट्स, बिकॉज v के जगह में हम यहां पर क्या डाल सकते हैं? यू कैन पुट हियर v इज इक्वल टू 81. अगर इस साइड पे ले आता हूं तो आई कैन राइट b t minus t1, राइट? b t minus t1 इज इक्वल टू हाउ मच?
v इस तरफ था, b को मैंने इस तरफ ले आया, नेगेटिव है तो इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक v इज इक्वल टू 81, राइट। सो ब्रैकेट ओपन करने से bt माइनस bt1 इज इक्वल टू 81, राइट। तो bt माइनस bt1 इज इक्वल टू 81, करेक्ट। तो स्टूडेंट यहां पर अगर हम t1 निकालना चाहते हैं तो t1 क्या हो जाएगा, b बाई a प्लस बी इंटू टी। इफ अगर हमने यहां से t1 निकाला तो t1 इज इक्वल टू हाउ मच, b बाय a plus b whole into t, right? That we got t1. And velocity is equal to how much? If I will be finding velocity, velocity is equal to how much? 81. In place of t1 you put this value of t, right? Student, इसको solve करके हमें t1 मिल गया. That t1 is equal to, you can see here, that t1 is equal to b divided by, right? एक साइड को आप t1 को ले जाओ, ठीक है, t divided by हमें मिल गया a plus b whole into t, right? b divided by a plus b whole into t, that is only t1, but we want to find v. So v is equal to how much in the question? V is equal to 81, correct? V is equal to 81, that is equal to how much? See here, in place of t1 you can put the value, a की जगह पे a रख दो, t1 की जगह पे कितना डालना है, b by a plus b whole into t, right? तो ab, तो student you can see AB by, so the question now, the answer will be how much? AB by A plus B into T, right? So that is the velocity. Which option is C? Which option is correct, just see? Option A, sir. Students, see next. Question number 18 देखते हैं, right? Let's see question number 18, ठीक है? A particle is moving with a uniform acceleration, because every equation of motion is valid for uniform acceleration only, right? Travels 24 meter and 64 meter in the first two consecutive intervals of 4 seconds, right? Travels 24 meter and 64 meter in the first two consecutive intervals of 4 seconds, right? मतलब consecutive intervals of 4 seconds, then its initial velocity will be how much? Students, ये दो equations दिया हुआ है, right? It is given two equations. Let's see, yes or no. तो students, अगर मैं equations of motion से बात करूं तो s is equal to how much? ut plus half it is, ऐसा तो नहीं दिया हुआ कि body starts from rest, ऐसा दिया हुआ है क्या? No, it is not given. Yes or no? तो स्टूडेंट पहला मतलब फास्ट 4 सेकंड में, मतलब 24 जा रहा है तो u इंटू 4 सेकंड मतलब 4 डाल दिया मैंने यहाँ पर, प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर, अंडरस्टूड? पहला सेकंड में वो 24 जा रहा है, राइट? और नेक्स्ट कंजिक्यूटिव सेकंड में कितना जा रहा है? 64 जा रहा है, राइट? नेक्स्ट कंजिक्यूटिव सेकंड, स्टूडेंट मान के चलो यहां से उसने शुरू किया, कुछ u में शुरू किया, ठीक है, 4 सेकंड के बाद वो यहां पर पहुंचा है और इसने डिस्टेंस कवर किया है कितना? 24 मीटर, राइट? और नेक्स्ट अगर यहां से बात करूं, नेक्स्ट 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है स्टूडेंट? इट इज गिवन हाउ मच? 64, राइट? सो उसका मतलब है ये एक इक्वेशन बन गया मेरा। दूसरा वो कितना जा रहा है? 64 प्लस 28 कितना हुआ? 88 मीटर कितने में जा रहा है? 4 सेकंड प्लस 4 सेकंड 8 सेकंड में जा रहा है, राइट? सो लेट्स डू दैट वन, लेट्स राइट द इक्वेशन फॉर दैट वन। सो यू कैन राइट 88 इज इक्वल टू u इंटू 8 सेकंड प्लस हाफ इंटू a into 8 का square, right? So you got two equations, student. This is equation 1, this is equation 2, right? Then you can solve both equation to get u and a, right? You solve both the equation, you can get the value of u and a, right? Yes or no? Just note it. Student, see question number 19 ऐसा दिया हुआ है, right? It is given a car starting from rest accelerate at a rate of f through a distance s, then continues at a constant speed for time t, then deaccelerates at the rate f by 2 to come to rest. If the total distance traveled is 115 s, then s f how they are related, right? Let's see. Students, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, so you can see कि कार जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट? तो आप देख सकते हो यहाँ पर, you can see here, अगर मैं क्वेश्चन को देख के बनाऊं तो स्टूडेंट ये रेस से स्टार्ट हुआ, u इज इक्वल टू 0, करेक्ट? और कितने में एक्सीलरेट हुआ स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू f में एक्सीलरेट हुआ, करेक्ट? यस और नो? और कुछ पॉइंट के बाद उसका वेलोसिटी v पहुंच गया, करेक्ट है ना? है कि नहीं? फिर उसने मान के चलो इस पॉइंट का नाम a दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम b दे देता हूं, फिर वो लोग कुछ कांस्टेंट स्पीड में वो गया, b टू c लेट उसने कुछ कांस्टेंट स्पीड में गया v, करेक्ट? फिर उसने वहां से क्या किया? डी एक्सीलरेट करना शुरू किया और फाइनली उसका स्पीड 0 हो गया, राइट?
और यहाँ पर जो डी एक्सीलरेट किया दैट इज -f/2 में डी एक्सीलरेट किया, करेक्ट? यस सर नो? और ये टोटल डिस्टेंस उसने दिया रखा है, दिस टोटल डिस्टेंस इज 15s, राइट? और उसने पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू, करेक्ट? स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं यहां से निकालूं, इफ आई विल बी फाइंडिंग फ्रॉम दिस प्लेस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s, अगर मैं इस पहला वाला मोशन पे बात करूं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s अगर पुट करूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? u इज 0 स्टूडेंट्स, 2 इनटू a की जगह में क्या डाल देता हूं? f डाल देता हूं और s लिख देता हूं, राइट? तो टुडे यू गॉट v स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच यू गॉट? 2fs. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, राइट? यस और नो? चलो मैं सेकंड पार्ट पे जाऊंगा, बट थोड़ा लास्ट पार्ट पे फिर चला जाता हूं, ठीक है? जब यहां पर तो कांस्टेंट स्पीड में गया ना, मतलब ये v ये फाइनली ये 0 हो जाता है। अगर मैं इस केस की बात करूं कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो वहां पर भी अगर मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पुट कर देता हूं, v इज इक्वल टू 0 माइनस u स्क्वायर जो है दैट इज नथिंग बट v स्क्वायर दैट इज इक्वल 2 इनटू माइनस f/2 इनटू s, करेक्ट? s मतलब स्टूडेंट्स यहां पर मैं s1 ले लेता हूं, यहां पर मैं s2 ले लेता हूं, राइट? I don't know exactly what distance it is moving, right? Not s2, this distance you take as s1, this distance you take as s2, this distance you take as s3. So right here s3, right? s3. And student v square is equal to मुझे क्या मिल गया? I got v square is equal to 2fs, right? I got v square is equal to 2fs. So equation 1 में अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो v square is equal to how much? 2 to cancel minus fs3, correct? है कि नहीं स्टूडेंट्स? देखो 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू fs3 और यहाँ पर v स्क्वायर मिल गया fs, ठीक है स्टूडेंट्स? अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इफ आई विल बी इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो व्हाट आई विल गेट? v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1:1 इज इक्वल टू 2fs बाय सॉरी s1 बाय fs3, करेक्ट? यस सर नो? तो स्टूडेंट f कैंसिल हो सकता है, तो इसका ये मतलब हमने निकाल दिए कि s3 जो है S3 is equal to nothing but 2 times of S1. हमें एक पहला क्लू मिल गया क्वेश्चन के लिए, करेक्ट? Up to this all clear, I think we got the first clue. Yes or no? Answer: total distance is equal to how much? 15s, right? Total distance is equal to 15s यहां से यहां तक, ठीक है? So यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे वो कितना डिस्टेंस गया होगा? जस्ट ये S3 is equal to 2 times of S1, मतलब ये जितना है ये उसका कितना है? S3 is equal to 2 times of S1. So अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो S2 is equal to how much स्टूडेंट? तो you can see here S2 is equal to how much? टोटल ये 2s, ये S3 है 2 टाइम्स, तो मतलब 3s अगर हो गया तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? डेफिनेटली 12s हो जाएगा, राइट? इट विल बी 12s, क्योंकि ये जितना है ये उसका कितना है? टोटल s का ये जितना है ये उसका 3 टाइम्स, 2 टाइम्स है, तो 2 + 1 3 टाइम्स हो गया, तो बाकी s से कितना? ये 12s हो जाएगा, करेक्ट? तो अगर मैं 12s की अगर बात करूं तो स्टूडेंट यू कैन सी, तो यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है t टाइम के लिए, राइट? तो 12s इज इक्वल टू v इनटू t, करेक्ट? 12s इज इक्वल टू v इनटू t, राइट? तो v का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? यू कैन फाइंड v का वैल्यू कितना है? v इज इक्वल टू आई गॉट 2fs, सो दैट इज रूट 2fs, v का वैल्यू इनटू t दैट इज इक्वल टू 12s, करेक्ट? ठीक है, तो अगर दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर दूं स्टूडेंट, देखो 12s मतलब 144s का स्क्वायर कर दिया मैंने, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2fs इंटू टी का स्क्वायर, राइट? यस सर नो? सी 2fs जो था वो 2fs हट गया तो उसका स्क्वायर हो गया, करेक्ट? तो अभी कैंसिल करके क्या आप निकाल सकते हो? कैन यू गॉट समथिंग? आई थिंक यू गॉट, एक s को कैंसिल कर दिया, राइट? और हमें उसने क्या पूछा है? उसने हमें s पूछा है, तो सिंपली अगर s की बात करूं तो s इज इक्वल टू हाउ मच? 2ft square by 144, right? So 2 by 144 I think 72, right? So that is s is equal to how much? 1 by 72 ft square. So this is there in option, I think s is equal to 1 by 72 ft square. This is the required answer to the question. Which part we are having doubt, just ask me. Sir, your voice is lagging. Video is also lagging. Friends, see question number 20, it is given a car starting from the engine of a motorcycle can produce a maximum acceleration of 5 meter per second square, right? Its brakes can produce a maximum retardation of 10 meter per second square, मतलब मैं इसको maximum 5 meter per second square में accelerate कर सकता हूं, और उसकी जो brakes है it can produce
a maximum retardation of 10 meter per second square, right? What is the minimum time in which it can cover a distance of 1.5 kilometer? What is the minimum time in which it can cover a distance of 1.5 kilometer, right? Let's see students that question. Okay. स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन को मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्राफिकली बताया था, ठीक है? आई हैड टोल्ड यू लास्ट क्लास ग्राफिकली, जस्ट इसको और एक बार बता रहा हूं। इस क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह है, अगर कोई भी बॉडी ए में एक्सिलरेट कर रहा है, राइट, और बी में डी एक्सिलरेट कर रहा है, करेक्ट? यस और नो? इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया और उसने एक्सिलरेट किया ए में, राइट, और यहाँ पर जो ए मतलब ए में एक्सिलरेट किया और बी में रिटार्डेशन किया एंड कम्स टू रेस्ट फाइनली, करेक्ट? और टोटल टाइम फॉर दिस टेकन, टोटल यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, द टोटल टाइम इज टी, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? करेक्ट? सो द टोटल टाइम डिस्टेंस कवर, ठीक है स्टूडेंट्स? और ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, करेक्ट? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, एंड यू नो दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो, तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं स्टूडेंट्स, ये मैंने लास्ट क्लास पे हमने डिराइव किए थे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स? फॉर दिस मैंने इसको लास्ट क्लास डिराइव किया था, राइट? सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड स्टूडेंट एस इज इक्वल टू हाफ इनटू ए इनटू बी इनटू टी स्क्वायर by a plus b, right? Actually s is equal to u is equal to 0 half at square, right? half at square और half a is equal to क्या है? ab by a plus b, ठीक है? इसको हमने निकाल लेते हैं एक्सीलरेशन की मोड पे, लास्ट क्लास मैंने बताया था आपको, ठीक है? तो पुटिंग दिस वैल्यूज यू कैन सी ये कितने में एक्सीलरेट कर रहा है स्टूडेंट्स? 5 में एक्सीलरेट कर रहा है और 10 में डी एक्सीलरेट कर रहा है, राइट? एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज इट इज आस्किंग, और उसने 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है, राइट? सो दैट मींस s इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, मतलब 1500 मीटर इज इक्वल टू हाफ इनटू a जो है वो 5 है, ये जो है वो 10 है, इनटू टी स्क्वायर, और नीचे पे हमने 5 + 10 कर दिए, ठीक है? यू सॉल्व दिस वन, देन यू कैन गेट t इज इक्वल टू 30 सेकंड, राइट? यू सॉल्व दिस वन, यू कैन गेट t इज इक्वल टू 30 सेकंड, राइट? Yes, sir. जो क्वेश्चन हमने अभी किए, इसका मैंने लास्ट क्लास भी एक एवरेज स्पीड निकाला था, अभी मैं थोड़ा इसको और एक बार बता रहा हूँ, जस्ट सी वेरी केयरफुली। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप ग्राफिकली डायरेक्टली कर सकते हो, उसको फिर पार्ट पार्ट करके करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक बॉडी यहाँ से रेस्ट से शुरू होता है 0 से, ठीक है? ये अल्फा में एक्सिलरेट हुआ यहाँ तक t1 टाइम के लिए, फिर वहां से बीटा में एक्सिलरेट डी एक्सिलरेट हुआ 0 तक आ गया, t2 टाइम के लिए आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स? मैं इसका नाम दे देता हूं, लेट दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ओ एंड दिस इज बी, राइट? तो अगर मैंने आपको बताया कि जस्ट फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए, ठीक है? मैंने बताया फाइंड द स्लोप ऑफ ओ ए, राइट? स्लोप ऑफ ओ ए विल गिव मी व्हाट स्टूडेंट? स्लोप ऑफ ओ ए विल गिव मी एक्सीलरेशन, राइट? सो एक्सीलरेशन मींस वेलोसिटी बाय टाइम, राइट? यस और नो? t1 टाइम के लिए उसने v max, तो अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? v max बाय t1, करेक्ट? सो दैट मींस t1 इज इक्वल टू, मैं v max को v लिखता हूं बार बार, तो t1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? v बाय अल्फा लिख सकता हूं। ऑल एग्री टू दैट? आई कैन राइट t1 इज इक्वल टू v बाय अल्फा, राइट? फिर वो d एक्सीलरेट कर रहा है, तो इसका स्लोप मुझे आपका वॉइस लैग कर एक्सीलरेशन देगा, राइट? तो स्लोप ऑफ a टू b में लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज बीटा, मतलब फिर से वो v से रिटार्ड कर रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम t2, तो it can be also written v by t2, right? So that means t2 is equal to v by beta, understood? हमने यहाँ से t1 निकाल दिए v by alpha और हमने t2 निकाल दिए v by beta, understood? From the graph only we found, yes or no? Is that visible? Is that clear? तो स्टूडेंट अगर मैं टोटल टाइम अभी निकालूं, if I'll be finding the total time up to this t, right? T is the total time, t is the total time, correct? T is the total time is equal to how much? t1 plus t2, right? So that is equal to how much, right? V by alpha plus V by beta, correct? So taking V common, you can write 1 by alpha plus 1 by beta. Just a minute. 1 by alpha by 1 by beta. So you can write T is equal to V into, ऊपर में क्या रह जाएगा? Alpha plus beta divided by alpha plus beta divided by LCM is alpha into beta. That is velocity only, right? Time. So from here, if any question is given alpha, beta and time t, then you can find here one by one. V max is equal to how much, students? Just see. V max is equal to how much? Alpha into beta divided by alpha plus beta. मतलब acceleration into deceleration divided by acceleration plus deceleration into t time. Correct?
So you got this one t, right? So if in any of the question the acceleration is given, the deceleration is given, so I think you can find the velocity, maximum velocity you can find, right? Yes or no? ये एक पहला पार्ट, ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, जस्ट इसको बॉक्स में रखो, ठीक है? नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन हमने किए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? वी हैव टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ दिस, राइट? दिस एरिया विल बी गिव मी, this area will give me, area under velocity time graph will give me what? Undoubtedly that will give me displacement, correct? Area, I have to find the area. So area, if I'll be finding, then area is equal to displacement, that is equal to half into what is the base of the triangle. You see, base of the triangle is time t, correct? Into what is the height of the triangle? Height of the triangle is v max, that is v. So you can get s is equal to how much? Half into t के जगह पे हमने t रख दिए और v max. V max is how much, students? You got here V max. V max is equal to, see here, alpha into beta divided by alpha plus beta whole into t, that is V max, correct? So you can get S is equal to how much? Now you can get S, I think. So that is displacement is equal to always half into alpha into beta by alpha plus beta whole into t square, literally correct? This formula just I applied, right? And last also I had done the question of average speed, right? Average speed means total distance covered. This is the total distance covered by total time taken is t. 1 t will be deducted, right? So that will be v by 2. So if in this question is asking about v average, अब यहाँ पर बता दे रहा हूँ, v average is equal to total distance taken. Total distance is s by total time taken is t, right? So by dividing this question, you can see, students, this t will be deducted. It will be only half into alpha beta by alpha plus beta, right? So that will be v maximum by 2, because v maximum is alpha into beta by alpha plus beta. मैंने by 2 को बस introduce कर दिया, तो v average is equal to v max by 2. You can write these things also. I think it's understood, or ask me the doubt.